Hello dear students, today we are going to start unit number 6, which is also very interesting. Okay, so in this unit we will see Newton's second law of motion, for rectilinear motion and for curvilinear motion. Okay, and third topic is work energy principle and impulse momentum equation. Okay, so Newton's second law for rectilinear motion and curvilinear motion is also very easy part. Work energy principle and impulse momentum equation is also very easy part. Okay, so there are only 4 concepts in this chapter. So we will see first what is Newton's second law. Okay, so everyone knows Newton's second law. The rate of change of linear momentum is directly proportional to the applied force. Okay, so first of all, what is momentum? Momentum is nothing but the quantity of motion. Okay, so what is quantity of motion? It is nothing but the product of mass and velocity. So this is Newton's second law. Okay, so here is the Newton's second law, which is rate of change of linear momentum is directly proportional to the applied force. So here m is constant, so we will take m outside. So it is dv by dt is equal to kf. So what is k? It is the constant of proportionality, which is equal to 1. So dv by dt is a is equal to f. So f is equal to ma. So this is Newton's second law. Now there is one concept, that is D'Alembert principle. Okay, D'Alembert principle. So what is D'Alembert principle? D'Alembert principle states that any moving body can brought to a dynamic equilibrium by imposing an imaginary force whose magnitude is equal to ma. Okay, so what is first of all dynamic equilibrium? ठीक है, हम सबको पता है what is equilibrium. ओके, इक्विलिब्रियम यानी क्या? जहाँ पे बॉडी जब रेस्ट कंडीशन में होती है और मोशन में होती है, तो बॉडी पे जो भी फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं वो सभी फोर्सेस की सम 0 होती है. ठीक है, तो उसको कहते हैं इक्विलिब्रियम. ठीक है, अभी तक हमने स्टैटिक इक्विलिब्रियम देखा था यूनिट 4 तक. सो हियर इज द डायनामिक इक्विलिब्रियम. सो व्हाट इज डायनामिक इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी व्हेन बॉडी इज इन मोशन. मीन्स व्हाट? इफ दिस बॉडी इज मूविंग like this, okay, and there are number of forces acting on the body. Okay, suppose force F is there. Okay, so inertia force ma is acting in this direction. So F ये माइनस ma है इक्वल टू 0. तो ये क्या हो गया? ये प्लस माइनस यानी क्या? सम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग इन x डायरेक्शन इज इक्वल टू 0. ठीक है, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन हमने स्टैटिक्स में भी देखी है, लेकिन अभी यहाँ पे डायनामिक्स में भी ये इक्विलिब्रियम कंडीशन आपको देखने को मिलेगी. समेशन एफ वाई इज आल्सो इक्वल टू 0, ये भी देखने को मिलेगा. ठीक है, तो ये डायनामिक इक्विलिब्रियम है. ठीक है, सो यहाँ पे क्या आएगा? जैसे कि एफ इज इक्वल टू एम ए. ठीक है, ये है, देखिए एफ इज इक्वल टू एम ए, मतलब क्या? एम ए को इधर लेके आइए, ma is equal to 0. So this ma is called as the D'Alembert force और inertia force. ठीक है, तो ये जो माइनस ma है इसको हम D'Alembert force कहते हैं या inertia force कहते हैं. सो बहुत इजी है. डायनामिक इक्विलिब्रियम के ऊपर ये सभी न्यूमेरिकल्स है. ठीक है, D'Alembert प्रिंसिपल के ऊपर.
सो व्हाट इज डीएलेम्बर्ट फोर्स, वो हम देखेंगे अभी. Force is imposed on the given system of forces acting on the body to create the imaginary situation of dynamic equilibrium. ठीक है, imaginary situation. Magnitude of these force is ma. डीएलेम्बर्ट फोर्स जो है उसका मैग्नीट्यूड रहता है ma रहता है. एंड दिस फोर्स ऑलवेज एक्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन टू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी. ठीक है, एक्सेलरेशन कौन से डायरेक्शन में रहेगा, जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव हो रही है. ठीक है, वो डायरेक्शन में एक्सेलरेशन रहेगा. और एम फोर्स जो है वो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में, मतलब बॉडी जिस डायरेक्शन में मूव हो रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एम फोर्स रहता है. इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ. अब हम सब कार, बाइक या बस में बैठे हैं. ठीक है, तो जब भी कार स्टार्ट होती है एकदम से सडनली, ठीक है, कार स्टार्ट होती है तो कार जैसे आगे जाती है तो हम कैसे पीछे हो जाते हैं ना. या जब भी कार ब्रेक लगाती है तो हम आगे जाते हैं. मतलब क्या, ब्रेक जो ब्रेकिंग फोर्स जो इस डायरेक्शन में, सपोज कार ये डायरेक्शन में मूव हो रही है. ठीक है, और ब्रेकिंग फोर्स लग रहा है, मतलब ब्रेकिंग फोर्स ये डायरेक्शन में है. ठीक है, तो हम हैं वो हम आगे सरकते हैं, तो दैट इज़ द इनर्शिया फोर्स. ठीक है, सो इनर्शिया फोर्स इज ऑलवेज एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन. ठीक है, तो अभी हम रेक्टिलिनियर मोशन के बारे में स्टडी करेंगे. ठीक है, इट इज़ वेरी इजी, बहुत इजी है. अभी जो रिसेंट न्यूमेरिकल्स एग्जाम में पूछे थे वो हम लेंगे इसके ऊपर. यस, an 80 kg block raised on rough horizontal plane as shown in figure. ठीक है, एक 80 kg ब्लॉक है. ओके, विच इज़ प्लेस्ड ऑन रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन. अब यहाँ पे रफ ये वर्ड यूज़ हुआ है. रफ जहाँ पे आएगा वहाँ पे फ्रिक्शन आएगा. ठीक है, रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन एज शोन इन फिगर. फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स P. यहाँ पे एक फोर्स दिया हुआ है उन्होंने. ठीक है, फोर्स P required to give an acceleration of 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये 30 डिग्री पे एक्ट हो रहा है. एक्सेलरेशन इज गिवन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टू द राइट. ठीक है, राइट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, मतलब बॉडी इस डायरेक्शन में मूव हो रही है. टेक द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज 0.2. ओके, सो हियर म्यू के इज गिवन 0.2. ठीक है, तो ये इक्विलिब्रियम है. ठीक है, डायनामिक इक्विलिब्रियम. जैसे ही इक्विलिब्रियम वर्ड आता है तो सबसे पहले आपको क्या ड्रॉ करना पड़ता है, FBD, फ्री बॉडी डायग्राम. ये डायनामिक्स है, डायनामिक्स में भी आपको फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करनी पड़ेगी. ठीक है, हम ये 80 kg ब्लॉक की फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं. इसके ऊपर जो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं वो शो करेंगे. तो सबसे पहले आएगा इसमें वेट. ओके, 80 kg इज द मास. उसको हम 9.81 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वेट हो जाएगा. ठीक है, 80 इंटू 9.81 विच इज़ 784.8 न्यूटन. राइट, अभी यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन आएगी, उसको हम R कहेंगे. ठीक है, P फोर्स ये डायरेक्शन में आ रहा है. ठीक है, तो P फोर्स को हम रिजॉल्व करेंगे. सबसे पहले ये आएगा P cos 30 and this will be P sin 30. So mu k is equal to 0.2. ओके, अभी देखिए MA फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगेगा, MA फोर्स. ठीक है, या ये डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, सो मोशन इज इन दिस डायरेक्शन, सो MA फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन. ठीक है, MA फोर्स इस डायरेक्शन में. यहाँ पे रफ वर्ड यूज़ हुआ है, मतलब यहाँ पे एक फ्रिक्शन फोर्स भी आएगा. सो डायनामिक्स में भी फ्रिक्शन रहता है, इसलिए उन्होंने काइनेटिक्स. हाँ, अभी ये जो चैप्टर है ये काइनेटिक्स है, यहाँ पे फोर्स आएगा. ठीक है, 5th यूनिट में फोर्स नहीं था, यहाँ पे फोर्स वर्ड यूज़ होगा.
ठीक है, और वो काइनेटिक्स होगा, ठीक है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन उन्होंने दिया हुआ है। सो व्हाट विल बी द फ्रिक्शन फोर्स? F इज इक्वल टू क्या रहता है, म्यू आर रहता है। तो यहाँ पे हम म्यू के यूज़ करेंगे, ठीक है। अभी वो कौन से डायरेक्शन में लेगा, जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव हो रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगता है। सो इट इज म्यू के आर, ठीक है, ये म्यू के आर, ओके। अभी हम इक्विलिब्रियम कंडीशंस यूज़ करेंगे, ठीक है। इक्विलिब्रियम कंडीशन समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। अभी एफ एक्स इज इक्वल टू 0, कौन से फोर्स है यहाँ पे? नहीं, हम सबसे पहले एफ वाई यूज़ करेंगे शायद, हाँ हमेशा एफ वाई यूज़ करना पहले, ठीक है। सो आर माइनस पी साइन थीटा, सॉरी 30 माइनस 784.8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इससे हमको वैल्यू मिलेगी आर की। सो आर इज इक्वल टू साइन 30 की वैल्यू रहती है 0.5 शायद, हाँ 0.5 पी, 0.5 पी प्लस 784.8, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ओके। नाउ समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0, समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0, तो उसमें क्या क्या आएगा, ये p cos 30 आएगा माइनस ये आएगा 0.2 r, 0.2 r माइनस m कितना है 80, a इज गिवन विच इज 2, ओके, 2 इज इक्वल टू 0। तो एक काम करते हैं, डायरेक्ट वैल्यू नहीं पुट करेंगे, म्यू के आर माइनस एम ए इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो पी कॉस 30 माइनस म्यू के कितना है 0.2 आर माइनस 80, ए की वैल्यू दी हुई उन्होंने जो कि है 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो पी कॉस 30 माइनस 0.2, आर की वैल्यू हम 1 से पुट करेंगे 0.5 पी प्लस 784.8 माइनस 160 इज इक्वल टू 0, माइनस 160, 80 इंटू 2 160 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। कॉस 30 ये आएगा 0.866 पी माइनस दिस विल बी 0.2 इंटू 0.5 विच इज़ 0.1 पी माइनस ये आएगा 784.8 इंटू 0.2 ये आएगा 156.96 minus 160 is equal. From this we will get the value of P 0.966 P minus 156.96 plus 196, sorry 160, sorry it is 316.96 इज इक्वल टू 0, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं। सो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ p फ्रॉम दिस इक्वेशन 0.966, इट इज़ गलत हुआ है कुछ, 0.866 माइनस 0.1 इट इज़ 0.766, हाँ कैलकुलेशन गलत हुआ है। इट इज़ 413.78 न्यूटन, ठीक है। सो दिस इज द आंसर। We will take another problem. Okay, here is the another problem.
देयर इज़ वन कन्वेयर बेल्ट. ओके, कन्वेयर बेल्ट जो बड़े बड़े इंडस्ट्री में फूड पैकेजिंग की जो इंडस्ट्री होती है या फूड प्रोडक्ट्स की, तो वहाँ पे जो मशीन्स होती है वो उसमें कन्वेयर बेल्ट लगा हुआ होता है पैकेट्स ट्रांसफ़र करने के लिए. ठीक है, तो यहाँ पे एक 10 kg का पैकेट दिया हुआ है उन्होंने, जो कन्वेयर बेल्ट के ऊपर रखा हुआ है और वो ऐसे ट्रांसफ़र हो रहा है. ठीक है, सो द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के इज़ गिवन 0.15. ओके, वेलोसिटी ऑफ कन्वेयर इज़ 5 मीटर पर सेकंड. ठीक है, तो उन्होंने क्या पूछा है, क्या दिया हुआ, इफ़ द स्पीड ऑफ कन्वेयर इज़ 5 मीटर पर सेकंड एंड देन इट सडनली स्टॉप. सडनली स्टॉप यानी क्या, ये जो वेलोसिटी है ये इनिशियल वेलोसिटी है, सडनली स्टॉप उन्होंने कहा तो फाइनल वेलोसिटी क्या रहेगी, 0 रहेगी, तो उन्होंने एस पूछा है. ठीक है, तो अभी इसमें पिछला कंसेप्ट आएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस. ठीक है, वी हमको पता है, यू भी पता है, एस फाइंड करना है, ए हमको फाइंड कर एस उन्होंने कैलकुलेट करने के लिए कहा है, तो हमको ए नहीं पता, तो हम ए कैसे कैलकुलेट करेंगे, बाय न्यूटन सेकेंड लॉ या डीएलम्बर्ट प्रिंसिपल. ठीक है, तो सबसे पहले हम ये कन्वेयर 10 kg जो बॉक्स है उसका एफ बी डी ड्रॉ करेंगे. ठीक है, 10 इंटू 9.81 आर, ये डायरेक्शन में मोशन है. हाँ, तो एम ए फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगेगा. ठीक है, एम ए फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स दोनों भी सेम डायरेक्शन में लगेगी, क्योंकि अगर बॉक्स ये साइड में जाता है तो फ्रिक्शन फोर्स भी ये साइड में लगेगा और एम ए फोर्स भी ये डायरेक्शन में लगेगा. ठीक है, सो दिस इज सपोज एम ए फोर्स एंड दिस इज म्यू के आर. नाउ बाय इक्विलिब्रियम कंडीशन समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0, सो आर इज इक्वल टू ये आएगा 98.1 न्यूटन. समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0, इट इज माइनस म्यू के आर माइनस एम ए इज इक्वल टू 0. सो फ्रॉम दिस वी विल गेट द वैल्यू ऑफ ए माइनस म्यू के 0.15, आर की वैल्यू है 98.1 माइनस एम इज 10, एक की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है, सो विल गेट द वैल्यू ऑफ ए 0.15 इंटू 9.81 डायरेक्ट कर देती हूँ मैं, इट इज़ माइनस 1.47. ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस. वी की वैल्यू 0 है क्योंकि बिफोर कमिंग टू स्टॉप वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो पूछा है. ठीक है, u इज़ 5 स्क्वायर प्लस ट्वाइस, a इज़ 1.47 इंटू s. सो s इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1.47, इट इज़ 8.5 मीटर. ठीक है, दिस इज़ द आंसर. ये भी क्वेश्चन दिसंबर 19 में पूछा हुआ है. ओके, विल टेक वन मोर प्रॉब्लम. एक वर्टिकल डायरेक्शन वाला प्रॉब्लम है. वर्टिकल डायरेक्शन का. ठीक है, a man of mass 100 kg stands on a spring weighing scale in lift. okay, एक लिफ्ट है. ठीक है, ओके, उस पर पर्सन बैठा हुआ है. ठीक है, तो उसका एक फोर्स रहेगा mg यानी वेट. ठीक है,
when the lift carries him upward with the uniform acceleration, मतलब क्या लिफ्ट कैसे जा रही है, ऊपर जा रही है, so acceleration is in the upward direction. Reacting on the weighing scale is found to be reading on weighing scale is found to be 1181 न्यूटन. ठीक है, हाँ. तो ये क्या है, देखिए, एक पर्सन यहाँ पे स्टैंड किया हुआ है. ठीक है, तो रीडिंग स्केल पे वेइंग स्केल पे जो रीडिंग दिख रहा है वो है 1181. 1181 यानी क्या, 1181 यानी क्या, नॉर्मल रिएक्शन. ठीक है, वो रहेगा नॉर्मल रिएक्शन. ठीक है, डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ए ऑफ द लिफ्ट. ठीक है, हमको एक्सेलरेशन फाइंड करना है. सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिफ्ट की एफबीडी ड्रॉ करेंगे. इसमें mg फोर्स आ गया, ये नॉर्मल रिएक्शन एक फोर्स आएगा. ठीक है, अभी ma फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगेगा, लिफ्ट ऊपर जा रही है. ठीक है, तो ma फोर्स विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. ma विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, सो समेशन Fy इज इक्वल टू 0 माइनस ma माइनस mg प्लस r is equal to 0. So m is 100 kg, 100. एक्सेलरेशन फाइंड करना है हमको. ठीक है, एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे, माइनस m 100 इंटू 9.81 प्लस r इज गिवन 1181. ठीक है, 1181 न्यूटन. सो फ्रॉम दिस वी विल गेट द वैल्यू ऑफ a. कैलकुलेट इज इक्वल टू 0 minus 1181 minus 100 into 9.81 divided by 100. It is 2. Answer is 2 meter per second square. ठीक है, ये आंसर नेगेटिव आता है. ओके, is deceleration. We'll take another problem. The system shown in figure is initially at rest. Neglect the axial friction of and mass of pulley. Determine the acceleration of block A. ठीक है, 1000 न्यूटन. ओके, इट इज 200 kg, 200 kg दिया हुआ है. तो उन्होंने पूछा है एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए. ये ब्लॉक ए है, 200 kg जिसका मास है. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 200 इंटू 9.81 ये कैलकुलेट कीजिए कितना आता है. 200 इंटू 9.81 इट इज़ 1962 न्यूटन. ठीक है, अभी ब्लॉक जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा. कैसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, ये ज़्यादा है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ब्लॉक आएगा. ठीक है, तो सबसे पहले हम ब्लॉक की एफबीडी ड्रॉ करेंगे. सो ब्लॉक की एफबीडी देखो ऐसे आएगी. मैं यहाँ पे ब्लॉक की एफबीडी ड्रॉ करती हूँ. ठीक है, इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन पर सबसे पहले तो 200 इंटू ये जो इसका वेट है वो आएगा 1962. ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है तो एम ए कौन से डायरेक्शन में लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में एम ए लगेगा. ठीक है, और कौन सा फोर्स लगेगा, ये जो पुली के ऊपर एक रोप दी हुई है और ये इसकी वजह से, ये वेट की वजह से इसमें टेंशन डेवलप हो रहा है. ठीक है, सो टेंशन इज़ ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी. ठीक है, टेंशन जो है अवे फ्रॉम द बॉडी रहेगा. सो यहाँ पे भी टेंशन आएगा. दिस इज टेंशन एंड दिस इज एम ए. सो समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0 टी माइनस एम जी प्लस एम ए इज इक्वल टू
0, ठीक है। अभी टी क्या रहेगा, ठीक है, टी की वैल्यू क्या रहेगी। ये भी रोप में एक ही टेंशन रहेगा, ठीक है, ये एक टेंशन है, मतलब टेंशन एक ही रहेगा यानी क्या, सेम रहेगा, ठीक है। तो अगर आप ये देखते हो तो यहाँ पे ये टी है, दिस टी इज इक्वल टू 1000 न्यूटन। ये भी टी क्या आएगा, 1000 न्यूटन ही आएगा। 1000 न्यूटन माइनस एम कितना दिया हुआ है, इट इज़ डायरेक्ट एम जी लिख देते हैं हम, 1962 प्लस ये आएगा 200 इंटू ए। फ्रॉम दिस वी विल गेट द वैल्यू ऑफ ए इज 1962 minus 1000 divided by 200, it is 4.81 meter per second square. Okay, so this is the problem. बहुत इजी है, ठीक है। और एक प्रॉब्लम लेंगे इसके ऊपर। Ten kg block is subjected to the force shown in figure. Determine the velocity when t is equal to 2 seconds if v is equal to 0 and when t is equal to 0, ठीक है। एक समझाती हूँ क्या प्रॉब्लम है। दिस इज 10 kg ब्लॉक, ओके। फोर्स एज शोन इन फिगर, उसके ऊपर एक फोर्स दिया हुआ है, जो फोर्स लगा है वो है F इज इक्वल टू 20t। डिटरमाइन इट्स वेलोसिटी, हमको क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी फाइंड करनी है एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड, v इज इक्वल टू 0 एट t इज इक्वल टू 0 यानी क्या, u इज इक्वल टू 0 है, ओके। तो हम ब्लॉक की एफबीडी ड्रॉ करते हैं पहले। ये आएगा सबसे पहले वेट उसका 10 इंटू 9.81, ठीक है। फिर ये आएगा नॉर्मल रिएक्शन, ओके। फोर्स ये डायरेक्शन में लग रहा है तो बॉडी ये डायरेक्शन में मूव होगी, तो एम ए फोर्स ये डायरेक्शन में लगेगा, एम ए फोर्स, एफ फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। तो हम सबसे पहले समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0, एफ इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। एफ कितना दिया हुआ है, 20t, ओके। एम इंटू ए, सॉरी एम की वैल्यू हम यहाँ पे डायरेक्ट पुट करते हैं 10, ठीक है। ए इज इक्वल टू क्या आएगा, ये 2t आएगा, है ना, ए इज इक्वल टू 2t। तो यहाँ पे उन्होंने ये दिया हुआ है, ठीक है, मतलब क्या, देयर इज चेंज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब क्या टाइम भी चेंज है, वेलोसिटी भी चेंज है, मतलब क्या, वो हमको लेना है dv/dt। तो यहाँ पे ये क्यों लेना पड़ रहा है, इसकी वजह से, ठीक है, इज इक्वल टू 2t, है ना। dv इज इक्वल टू 2t इंटू dt, दोनों साइड में हम इंटीग्रेट करेंगे बिटवीन 0 to v, और यहाँ पे करेंगे 0 to 2, 0 to v जो फाइंड करना है, और 0 to 2, ठीक है। तो ये आएगा v इज इक्वल टू, ये आएगा 2t स्क्वायर बाई 2, 2t स्क्वायर बाई 2, ऐसे प्लस c लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमने लिमिट पुट कर दी है, ठीक है। जब हम लिमिट नहीं पुट करते तो आप कांस्टेंट ले सकते हो, अगर आप लिमिट पुट करें तो कांस्टेंट लेने की वो एक अलग मेथड है, ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आएगा 0 to 2, यहाँ पे 2 कैंसिल, t की वैल्यू हम 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, v इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड, दिस आंसर, ठीक है, बहुत सिंपल है। वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक एट t इज इक्वल टू 2 पे 4 आएगी। आज के लिए इतना ही। दिस इज द काइनेटिक्स ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है, न्यूटन सेकेंड लॉ विच इज़ एप्लीकेबल फॉर रेक्टिलिनियर मोशन। कल हम न्यूटन सेकेंड लॉ फॉर कर्वीलिनियर मोशन देखेंगे, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।